اگر آج رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر ہماری بستیوں میں آ جائیں تو کیا ہمیں پہچان پائیں گے، یا ہم صرف نام کے مسلمان نظر آئیں گے؟ جس قوم کے پاس قرآن ہو، جس کا نبی ساری دنیا کے لیے رحمت ہو، آج وہی قوم سب سے زیادہ پریشان کیوں ہے؟ کیا دشمن زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، یا ہم اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں؟ ہر نماز کو وقت نہیں دے پائے لیکن دنیا کے لیے پوری زندگی دے دی، پھر جب جلت ملی تو ہم نے قسمت کو دوش دے دیا۔ مسلمانوں کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ جلت و خواری اور ناداری پر نہ دکھتا ہو؟ اور کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت، مفلسی، بے روزگاری پر آنسو نہ بہاتی ہو؟ حکومت ان سے چھنی، دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا، زمانے کی ہر مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر دوستو، فقط رونے اور دل دکھانے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے علاج پر خود مسلمان قوم غور کرے۔ علاج کے لیے چند چیزیں سوچنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ اصلی بیماری ہی کیا ہے، اور پھر دوسری یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں مرض پیدا ہوا، اور تیسری یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، اور چوتھی یہ کہ اس علاج میں پرہیز کیا ہے۔ اگر ان چار باتوں کو غور کر کے معلوم کر لیا جائے تو سمجھو علاج آسان ہے۔ اس سے پہلے بہت سے لیڈران قوم اور پیشوایان ملک نے بہت غور کیے اور طرح طرح کے علاج سوچے۔ کسی نے سوچا کہ مسلمانوں کا علاج صرف دولت ہے، مال کماؤ، ترقی پا جاؤ۔ کسی نے کہا کہ اس کا علاج عزت ہے، کونسل کے ممبر بن جاؤ، آرام ہو جائے گا۔ کسی نے کہا کہ تمام بیماریوں کا علاج صرف بیلچہ ہے، بیلچہ اٹھاؤ، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سب نادان طبیبوں نے کچھ روز بہت شور مچایا، مگر مرض بڑھنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ ان کی مثال اس نادان ماں کی سی ہے کہ جس کا بچہ پیٹ کے درد سے روتا ہے اور وہ خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ میں دودھ دیتی ہے، جس سے بچہ کچھ دیر کے لیے بہل جاتا ہے مگر پھر اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت تو اس کو تھی کہ بچے کو مسہل دے کر اس کا معدہ صاف کیا جائے۔ مسہل یعنی پیٹ صاف کرنے والی دوائی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کسی لیڈر معالج نے اصل مرض نہ پہچانا اور صحیح علاج اختیار نہ کیا، اور جس اللہ کے بندے نے مسلمانوں کو ان کا صحیح علاج بتایا تو مسلم قوم نے اس کا مذاق اڑایا اور اس پر آوازیں کسی، اس پر طنز کیا، زبانیں تانا دراز کی، گرج کی۔ یہ صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دھرا۔ ہم اس کے متعلق عرض کرنے سے پہلے ایک حکایت عرض کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا کسی حکیم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حکیم صاحب، میری نگاہ موٹی ہو گئی ہے، مجھے کم دکھائی دیتا ہے۔ حکیم نے کہا، بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا، کمر میں درد بھی رہتا ہے۔ حکیم نے جواب دیا، بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے کہا، چلنے میں سانس بھی پھول جاتا ہے۔ جواب ملا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھا بولا، حافظہ بھی خراب ہو گیا ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ طبیب نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے کو غصہ آیا اور بولا کہ اے بیوقوف حکیم، تو نے ساری حکمت میں بڑھاپے کے سوا کچھ نہیں پڑھا؟ حکیم نے کہا کہ بوڑھے میاں، آپ کو جو مجھ بے قصور پر بلا وجہ غصہ آیا ہے، یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بے عین ہی آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ سے، وہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ کی پیروی چھوڑ دی۔ ہماری زندگی اسلامی نہ رہی، ہمیں خدا کا خوف، نبی کی شرم، آخرت کا ڈر نہ رہا۔ یہ تمام نحوستیں
सिर्फ इसीलिए हैं। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, सब नींद भर सोना तुझे, सर में नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मस्जिदें हमारी बीमान, मस्जिदें हमारी वीरान, मुसलमानों से सिनेमा और तमाशे आबाद, हर किस्म के अयूब मुसलमान में मौजूद। गैर मुस्लिमों की रस्में हम में कायम हैं, हम किस तरह इज्जत पा सकते हैं। मोहम्मद अली जौहर ने क्या खूब कहा है, बुलबुलो गुल गए गए लेकिन हमको गम है चमन के जाने का। दुनियावी तमाम तरक्कियां बुलबुलों थीं और दौलते ईमान चमन। अगरचे चमन आबाद है तो हजारहा बुलबुलें फिर भी आ जाएंगी। अगर चमन ही उजड़ गया तो अब बुलबुलों के आने की क्या उम्मीद। मुसलमानों की असल बीमारी तो शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ना है। अब इसकी वजह से और बहुत सी बीमारियां पैदा हो गईं। मुसलमानों की सदा बीमारियां 3 किस्म में मुनहसर हैं। अव्वल, रोजाना नए नए मजहबों की पैदावार और हर आवाज़ पर मुसलमानों का आंखें बंद करके चल पड़ना। दूसरे, मुसलमानों की खाना जांगियाँ और मुकद्दमाबाजियाँ और आपस की अदावतें। तीसरी, हमारे जाहिल बाप दादों की ईजाद की हुई खिलाफ सरा या फजूल रस्में। इन 3 किस्मों की बीमारियों ने मुसलमानों को तबाह कर डाला, बर्बाद कर दिया, घर से बेघर बना दिया, मकरूज कर दिया, गर्जे की जिल्लत के गड़े में धकेल दिया। पहली बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमान एक बात खूब याद रखे, वो ये कि कपड़ा नया पहनो, मकान नया बनाओ, गिजाएं नई खाओ, हर दुनियावी काम नए नए करो, मगर दीन वही 1300 वर्ष 1400 वर्ष पुराना इख्तियार करो। और हमारा नबी पुराना, दीन पुराना, कुरान पुराना, काबा पुराना, खुदा पुराना, हम इस पुरानी लकीर के फ़कीर हैं। ये कलिमात वो हैं जो अक्सर हजरत किबलाए आलम पीर सैयद जमात अली साहब मरहूम मगफूर पीर तरीक़त अलीपुरी फरमाया करते थे। और इसका परहेज ये है कि हर बद मजहब की सोहबत से बचो, उस मौलवी के पास बैठो जिसके पास बैठने से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क और इत्तिबाए शरीयत का जज्बा पैदा हो। दूसरी बीमारी का इलाज ये है कि अक्सर फितना और फसाद की जड़ 2 चीज़ें हैं, एक गुस्सा और अपनी बड़ाई, और दूसरे हुकूक सरैया से गफलत। हर शख्स चाहता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, सब मेरे हुकूक अदा करें, मगर मैं किसी का हक अदा ना करूं। अगर हमारी तबीयत में से खुद निकल जाए, आजिजी और तवाज़ो पैदा हो, हम में से हर शख्स दूसरे के हुकूक का ख्याल रखे, तो इंशाअल्लाह ताला कभी जंगो जिदाल और मुकद्दमाबाजी की नौबत ही ना आए। फ़कीर की ये थोड़ी सी गुफ्तगू इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा देगी, शर्त कि इस पर अमल किया जाए। और तीसरी बीमारी वो है कि जिसके इलाज के लिए ये किताब लिखी जा रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों में बच्चे की पैदाइश से लेकर मरने के वक्त तक मुख्तलिफ मौक़ों पर ऐसी तबाहकुन रस्में जारी हैं जिन्होंने मुसलमानों की जड़ें खोखली कर दी हैं। मैंने खुद देखा है कि उनके मरने, जीने, शादी ब्याह की रस्मों की बदौलत सदहा मुसलमानों की जायदादें, मकानात, दुकानें गैर मुस्लिमों के पास सूदी कर्जे में चली गईं, और बहुत से आला ख़ानदान के लोग आज किराए के मकानों में गुजार कर रहे हैं और ठोकरें खाते फिरते हैं। एक निहायत ही शरीफ ख़ानदानी रईस ने अपने बाप के 40वें की रोटी के लिए एक गैर मुस्लिम से 400 रुपये कर्ज लिए, जिससे 2700 रुपये दे चुके हैं और 1500 और बाकी थे। उनकी जायदाद भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब वो जिंदा हैं, साहिब औलाद हैं, फाके से गुजार कर रहे हैं। अपनी कौम की इस मुसीबत को देखकर मेरा दिल भर आया। तबीयत में जोश पैदा हुआ कि कुछ खिदमत करूं।
रोशनाई के ये चंद कतरे हकीकत में मेरे आंसुओं के कतरे हैं। खुदा करे कि इससे कौम की इस्लाह हो जाए। मैंने ये महसूस किया कि बहुत से लोग इन शादी ब्याह की रस्मों से बेजार तो हैं, मगर बिरादरी के तानों और अपनी नाक कटने के खौफ से जिस तरह हो सकता है कर्ज उधार लेकर इन जहालत की रस्मों को पूरा करते हैं। कोई ऐसा मर्द मैदान नहीं बनता जो बिला खौफ हर एक के ताने बर्दाश्त करके तमाम रस्मों पर लात मार दे और सुन्नत को जिंदा करके दिखा दे। जो शख्स सुन्नत मुअक्कदा को जिंदा करे उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है, क्योंकि शहीद तो एक दफ़ा तलवार का जख्म खाकर मर जाता है, मगर ये अल्लाह का बंदा उम्र भर लोगों की जवानों के जख्म खाता रहता है। वाज़ेह रहे कि मुरब्बजा रस्में 2 किस्म की हैं, एक तो वो जो सरअनन नाजायज़ हैं और दूसरी वो जो तबाह कुन हैं, और बहुत दफ़ा उनके पूरा करने के लिए मुसलमान सूद ही कर्ज लेते हैं, और सूद देना भी हराम है और सूद लेना भी। इसलिए ये रस्में हराम काम का जरिया हैं। इस रिसाले में दोनों किस्म की रस्मों का जिक्र किया जाएगा, और बयान का तरीका ये होगा कि इस रिसाले के अलहदा अलहदा बाब होंगे, यानी पैदाइश की रस्मों का एक बाब, फिर ब्याह शादी की रस्मों का एक बाब, फिर मौत की रस्मों का अलहदा बाब, वगैरह वगैरह। हर रस्म के मुतालिक बाब मतलब यानी कि हिस्सा अलग अलग हिस्सों में बयान की जाएगी। हर रस्म के मुतालिक 3 बातें अर्ज की जाएंगी। अव्वल तो मुरब्बजा रस्म, और फिर उसकी खराबियाँ, फिर उसका मसनून और जायज़ तरीका। इस किताब का नाम इस्लामी ज़िंदगी रखता हूँ, और रब्बे करीम के करम से उम्मीद है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इसको इसमें व मुसम्मा बनाए और कबूल फरमाकर मुसलमानों को इस पर अमल की तौफीक दे। मेरे लिए इसको तोसाए आखिरत और सदकाए जारिया बना दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। नाचीज़ अहमद यार खान नईमी और जानवी बदायूनी। दोस्तों, इस किताब का नाम इस्लामी ज़िंदगी, और इसके मुसन्निफ़ हैं मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जो कि मुफस्सिर सही हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी है। आज से हम इस्लामी ज़िंदगी किताब का पूरा मुताला करेंगे, और आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर सुनें। इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं। आज ये इंट्रो था। आज से हम रोज़ हफ्ते में कम से कम 2 बार इसकी एपिसोड बनाएंगे, और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर सुनें।